कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीना सिंह आप सभी का वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव प्रेजेंस नीना सिंह शो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मशहूर कलाकारों से मुलाकात, उनकी कला, उनके संघर्ष से सफलता की यात्रा तक आपको रूबरू कराना ही हमारे शो का उद्देश्य है। कोल्हापुर जिले के शिरोल जैसे छोटे से गांव में जन्मे एक कलाकार ने साबित कर दिया कि धरती पर हर किसी के लिए आसमान एक सीमा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए फक्र की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां पहुंचने का हर कलाकार सपना देखता है। आइए मिलते हैं पुणे शहर के प्रसिद्ध कलाकार श्री राव साहब गुरव से, परंतु उससे पहले मैं आपका परिचय उनके कला से कराती हूँ। Shri Rao Sahab Gurav, a legendary artist, an artist born in a small village like Shirol in the Kolhapur district, has proved that sky is the limit for everyone on the earth. If an artist looks at the horizon to achieve the ultimate proficiency, he reaches such a height that the whole world has to raise their heads to look at him. And Rao Sahab Gurav is the real example of it. Unaware of his artistic potential, his parents were very reluctant and unsupportive towards Sri Gurav for choosing art as his career. In such odd circumstances, he rose to such heights that every artist dreams of. He completed his art education at the Abhinav Kala Mahavidyalaya, Pune. He served his alma mater as the Master of Fine Arts, and after 40 years of service, he retired as a principal of Abhinav Kala Mahavidyalaya, Pune. He is still active as an artist in his 76th year. As seen in his paintings, his landscape paintings and human life are like original melodies of nature. His series of paintings in the theme The Shepherd or the Dhangar has been appreciated all over the world. One of his paintings of this series appeared as the cover page of the book Delhi, written by Sri Khushwant Singh, published by a French publication. The Shepherd series of paintings explores a very intimate relationship between the artist and the subject, depicting the living with nature, their sensitivity, kindness, strength, and lifestyle. The artist excels in every aspect of art,
be it delicate and complex color combination or well integrated compositions or abstract brushwork. His work has been exhibited through solo shows held in various cities like Mumbai, Pune, Ujjain and Patan. His work in water, acrylic and oil medium is represented in number of collections in the country like the State Museum on Satara, Air India, Air Force, South Central Zone Cultural Center Nagpur, All India Radio or the Akashvani, Camlin Private Limited, Indian Navy CGS Vivek Ship, KK Nag Foundation Pune, Indo-German Investment and Development Company New Delhi and many private collections in USA, France, England, Africa and Japan. He is bestowed with several awards like Kala Gaurav Puraskar by Yashwant Kala Mahavidyalaya 2019, Akhil Bhartiya Kala Shikshan Gaurav Samman by P.A. Inamdar College of Visual Effects Design and Art, Pune 2018, Kala Bhushan Puraskar by Pune Teacher Association 2018, Shirol Bhushan Puraskar Kolhapur, the Maharashtra State Award of 2001 for Best Artist and Art Teacher, Pune Municipal Corporation Best Teacher Award, South Central Zone Cultural Center Nagpur Award for Best Painting, the Kalidas Award at Ujjain, the Tias Award for Watercolor Landscape, Hyderabad Art Society Award, Bhavan Rao Pant Birth Centenary Exhibition Pune Award to name a few. He received first prize for watercolor, landscape and pencil sketching in several events. He was honored by the Bombay Art Society by offering him life membership. He received a scholarship from Sakal newspaper for painting at Mahabaleshwar. Sri Rao Sahib Gaurav is not satisfied with his success as an individual. He has not forgotten his difficult days of struggle and he desires to give a helping hand to younger artists who come from rural areas and face many problems. He and his daughter, a young and successful entrepreneur, Mrs. Chitra Mete, founded Sumbaran Art Foundation just 30 kilometers away from Pune. The Sumbaran Foundation for Art and Culture is a well-known institution that conserves and promotes Indian art, tradition, language and culture. The Sumbaran is full of natural and scenic beauty spread in a 1-acre land. It has a permanent studio, a residing place with magnificent architecture and an inspiring environment for artists to work. Sumbaran has facilities for accommodation along with food and a beautiful exhibition area. Sumbaran has all the required arrangements for conducting discussions, demonstrations, training workshops and residential camps. The foundation conducts many activities such as art workshops, calligraphy workshops, art camps, art exhibitions and art competition to enrich art and the artists associated with it. Sumbaran is a place where artists with similar thoughts collect and work for the betterment of art and artists. The foundation honors senior artists annually and bestows Kalanidhi Award.
अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। नमस्कार सर, वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव द्वारा प्रस्तुत नीना सिंह शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज आप हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अपनी कला यात्रा साझा कर रहे हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और पुणे शहर में आपका कैसे आना हुआ, आपका बचपन कैसे बीता, इसके बारे में बताइए। मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में शिरोल नाम मेरा गांव है और वो गांव थोड़ा सा रूरल है और रूरल में मैं बचपन से ही स्कूल जाता था। 10th तक वहां पे मैं सीखा और ये ड्राइंग की मुझे बहुत आदत थी, बाकी सब्जेक्ट में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। और क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब मैं था ना, उसी टाइम में जो ड्राइंग करता था वो भी अभी मुझे याद आता है। बाद में मैं 5th 6th 7th 10th तक मुझे ड्राइंग टीचर नहीं था, कोई भी नहीं था, तो मैंने फादर को बोल दिया कि मुझे ड्राइंग में ही 10th होना है और ड्राइंग होने के बाद मुझे ड्राइंग टीचर बनना है। मेरे उसी टाइम मेरा ये था। तो बाद में मुझे एक ड्राइंग टीचर गांव के मिल गए और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड परीक्षा के लिए बिठा दिया और वो दोनों मैंने किया। बहुत क्या परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो भी मुझे ड्राइंग की इतनी आई थी, लाइकिंग था मुझे कि उसी टाइम मैंने वो 10th तक किया। और 10th होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि तू 10th हो तब तक आपको ड्राइंग का कोर्स सभी तरह मिल जाएगा, नहीं तो 10th के होने के बाद मुझे बाकी इंटरेस्ट ही नहीं था, ओनली ड्राइंग। तो मैं 10th अच्छी तरह से हो गया और बाद में मैं पुणे आ गया। पुणे में आके मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर पुणे में थी ना, उनको बोल दिया कि मुझे 1 साल सिर्फ यहाँ पे रखने के लिए मुझे आप इधर दे दो। तो उन्होंने उनके रख दिया और मैंने अभिनव कला महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। और उसी टाइम ये न्यू कोर्स नहीं था ना, फाउंडेशन और स्पेशलाइजेशन कोर्सेस, डायरेक्टली वो आर्ट टीचर्स डिप्लोमा का कोर्स था और वो मैंने ज्वाइन किया क्योंकि सर्विस चाहिए था। सर्विस करके मुझे बाकी एजुकेशन, तो मैंने आर्ट डिप्लोमा यानी उसी टाइम DTC बोलते थे, ड्राइंग टीचर कोर्स, अभी आर्ट टीचर्स कोर्स बोलते हैं, तो मैंने किया। और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ड्राइंग टीचर करके किधर गांव में जाना, नहीं तो पुणे में तो बहुत 8-10 मुझे जॉब मिल गए। तो मैंने भी क्या किधर जॉब करेंगे, एक जॉब कुछ तो करना चाहिए ना। तो एक स्कूल में मैंने जॉब पकड़ दिया और बाकी सब मुझे ऐसा लगा कि GD आर्ट फाइन आर्ट करेंगे, तो फाइन आर्ट के लिए एडमिशन कर दिया इधर अभिनव कला महाविद्यालय में। तो अभिनव कला महाविद्यालय में तो टाइमिंग था सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, तो हमारा स्कूल था 10 बजे से 5 बजे तक। अब लेकिन उसी टाइम के इंस्पेक्टर पाटिल साहब के बहुत अच्छे इंस्पेक्टर थे, हमारे प्रिंसिपल भी डेंगले साहब अच्छे थे, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और टीचर भी कामत सर, SS कामत, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, हम जो सर्विस करने वाले लोग हैं उसमें का मैं भी एक हूँ, तो सर्विस करने वाले लोगों को 7 से 10 तक और 5 से 6 9 तक, 8:30 9 तक ऐसा टाइमिंग कॉलेज का किया। तो हमने दिन भर स्कूल में जॉब करना और सुबह और शाम को पेंटिंग का पूरा स्टडी करना। ये करके करके हमने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा में मैं मेरिट में आया और मेरिट में आने के बाद मुझे डेंगले सर, कामत सर और नांगरे सर, इन लोगों ने मुझे 1970 में अभिनव कला महाविद्यालय में मुझे सिलेक्ट किया असिस्टेंट लेक्चरर। तो मैंने असिस्टेंट लेक्चरर ज्वाइन करने के बाद जी उसी टाइम वही साल 70 में ये फाउंडेशन नया कोर्स आ गया और उसी टाइम मुझे तो मालूम नहीं था कि नया कोर्स में क्या है क्या नहीं। तो हमको डेंगले सर ने सब कंडक्ट किया और हमको असिस्टेंट रख के ये पूरा न्यू स्टडी है जो फाउंडेशन का, वो पूरा सब हमको बता दिया। और वो बाद में मैं 16 ईयर अभिनव कला महाविद्यालय में न्यू कोर्स में पूरा सिखा दिया स्टूडेंट को। 1000 स्टूडेंट है मेरे और उनको मैंने सिखा दिया। बाद में मैं फाइन आर्ट सिखा दिया। तो ये करने में मुझे इतना अच्छा लगता था कि 12 साल के बाद मैं लेक्चरर हो गया, 2 साल के बाद मैं प्रोफेसर हो गया, उसके बाद मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, बाद में लास्ट में 3-4 साल में अभिनव कला महाविद्यालय पाषाण
और अभिनव कला महाविद्यालय तिलक रोड पे, दोनों तरफ मैं प्रिंसिपल काम कर दिया। और उसी टाइम मुझे एक था कि स्टूडेंट को सिखाना और स्टूडेंट को अच्छी तरह से कितना पेंटिंग में मेहनत करना चाहिए वो मैं बोलता था। 20 साल 25 तक आपको कंटिन्यू काम करना चाहिए तो तुम खुद को आर्टिस्ट समझो। एकदम डिप्लोमा होने के बाद आर्टिस्ट नहीं हो सकता, वो उसी टाइम मुझे मालूम था। तो आज ही मैं खुद को ऐसा समझता हूँ कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, अभी मेरी यात्रा आर्ट की चल रही है। तो मैं 70 पास हो गया है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो सर, एज एन आर्टिस्ट आपको किस इंडियन आर्टिस्ट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हाँ सुनो, मैं वाटर कलर बहुत करता जी था उसी टाइम, कॉलेज में ही वाटर कलर मुझे बहुत पसंद था। और इंडियन आर्टिस्ट क्या, देखो इंडियन आर्टिस्ट लोगों का उसी टाइम हुसैन बिशन ये सब एकदम फेमस आर्टिस्ट थे, उनका कोई प्रभाव मेरे पर नहीं, मेरे टीचर का मेरे पर ज्यादा प्रभाव हो गया। नांगरे सर और खटावकर सर जो वाटर कलर करते थे ना, उनका मेरे पर ज्यादा प्रभाव हो गया। आज तक मैं कभी कभी बीच में अभी क्या अलग ढंग से पेंटिंग करता हूँ, कैनवास के ऊपर करता हूँ, एक्रेलिक, ब्लैक एंड व्हाइट, ऑयल पेंट सब हैंडल करता हूँ। लेकिन वाटर कलर मुझे इतना पसंद है कि बीच में हमारी गुरु की याद आती है तो मैं बीच में वाटर कलर करता हूँ। तो वो अब टीचर के काम देख के मैं प्रभावित हुआ। ओके। तो सर, आपकी मैंने बहुत सारी सीरीज के वर्क देखे हैं, उसमें आपका जो शेपर्ड सीरीज है वो बहुत ही फेमस हुआ, तो उस सीरीज के बारे में बताइए और इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, आप कैसे इस और मतलब आपने सोचा कि मतलब आप मेरे ख्याल से 30 इयर्स से शेपर्ड सीरीज पे काम करते जा रहे हैं और आज भी करते जा रहे हैं, तो इतना इंटेंस आपके ऊपर उसका प्रभाव है उस सीरीज का, तो उसके बारे में बताइए। देखो मैं रूरल एरिया से हूँ, जो मेरा गांव है और जिधर मैं रहता था ना उधर बाजू में ये सेपर्ड लोग सब रहते थे और बचपन से ही मैंने देखा था उन लोगों को, बचपन से देखा था। लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं था कि ये सेपर्ड लेके मैं कभी भविष्य में पेंटिंग करूंगा। तो बाद में मैं मेरी अभी कॉलेज की सब मेरा स्टडी, कॉलेज में मैंने जो लेक्चरर हुआ जो सब देखा ना, तो बाद में एक बार मैं ऐसा ही गाँव गया था और गाँव से ऐसा सुबह सुबह जल्दी में पुणे आना था मुझे। तो मैंने उधर एसटी स्टैंड पे इन लोगों को देखा और उनके वो बड़े बड़े मूछे, रेड फेटे, उनकी सब ड्रेपरी, वो देख के क्या मुझे भी 20-25 साल हो गए थे फील्ड में। तो मैं सोचता था कि क्या करेंगे क्या नहीं, कौन सी सीरीज में काम करेंगे, कुछ तो कुछ नया नया करना चाहिए, वाटर कलर ही नया, एक्रेलिक करना चाहिए, ऑयल कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर चाहिए। हर वक्त कोई ना कोई मैं ऐसा करता था हूँ। तो उसी टाइम मुझे ऐसा एक मन में आ गया कि ये सेपर्ड वाले इस पर ड्राइंग किया तो बहुत अच्छा होगा और अच्छा काम चलेगा। तो मैंने पहला ड्राइंग शुरू किया। अभी मेरे पास मैंने पहला ड्राइंग किया है वो मैंने रख के रखा है। बहुत लोगों ने मांगा लेकिन मैंने किसको नहीं दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्राइंग मैं सेपर्ड का किया वो मेरे पास है। तो बाद में मैं उन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उन लोगों के साथ घुमा हूँ, उनकी क्या संस्कृति है, उनकी क्या भाषा है, ये सब मैंने स्टडी किया। उनके गीत क्या है वो सुना मैं, उनकी बहुत से बड़ी यात्रा होती है, उनके यात्रा में मैं गया हूँ। ये सब करते करते मैंने कैनवास के ऊपर ये सेपर्ड सीरीज लास्ट 30 साल मैं करता हूँ। और ये सेपर्ड सीरीज करते हुए मुझे इतना आनंद हो गया कि मेरा एक सेपर्ड का पेंटिंग एक पेरिस में कौन अपना लेखक खुशवंत सिंह ने दिल्ली ये सब्जेक्ट पे, दिल्ली ये नाम है, दिल्ली का जो इतिहास है वो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और खुशवंत सिंह ने वो सब इतिहास और वो सब बुक फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसफर हुआ था और इंटरनेट से वो एक पोचा नाम की उधर की एक ये कंपनी है बुक की, उन्होंने सब इंडियन आर्टिस्ट के इंटरनेट से कौन सा पेंटिंग लेना है उसके कवर पे वो देखे जी। हाँ, तो वो देखे तो मुझे कॉल आ गया और मेरा पेंटिंग उन्होंने सिलेक्ट कर दिया खुशवंत सिंह के दिल्ली के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज पे, वो कवर के ऊपर मेरा पेंटिंग है। तो वो फ्रेंच मैं इतना ये सेपर्ड में इतना काम किया 30 साल, तो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला ऐसा मुझे लगता है कि वो खुशवंत सिंह के एक बुक के कवर के लिए मेरा पेंटिंग सिलेक्ट किया। जी,
हाँ, बाकी दिल्ली में वो ललित कला एकेडमी में नेशनल आर्टिस्ट होने के लिए 2 टाइम पेंटिंग भेजना पड़ता है। हर टाइम पेंटिंग भेजना पड़ता है। 2 टाइम पेंटिंग सिलेक्ट हो गया तो तुम नेशनल आर्टिस्ट होते हैं। तो मैं दोनों ही टाइम मैंने मेरा सेपर्ट सीरीज में ही काम करूंगा जिनसे उधर दिल्ली में दोनों टाइम ललित कला में मैंने पेंटिंग भेज दिया। दोनों ही पेंटिंग सिलेक्ट हो गया और मैं नेशनल आर्टिस्ट का मुझे कार्ड मिल गया। वो भी एक सेपर्ट सीरीज का मेरी एक टॉप की बात है। अचीवमेंट। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे आपने रियलिस्टिक से क्रिएटिव कॉम्पोजिशन की ओर बढ़े, फिर आपने एब्स्ट्रैक्शन में भी मतलब के को भी अपने एक्सप्रेशन का माध्यम बनाया, तो इस जर्नी के बारे में बताइए। देखो क्या होता है कि तुम कौन सा, मैंने सेपर्ट सीरीज में काम किया तो उसी टाइम मैं भी ये सोचता था कि एक ही सीरीज में काम करके वैसा ही रहने से थोड़ा अलग ढंग से विचार होना चाहिए। तो मैंने वाटर कलर में रियलिस्टिक काम बहुत किया। तो बाद में वाटर कलर के बारे में मैंने थोड़ा सोचा कि तुमको एक स्लाइटली इफेक्ट में ना वाटर कलर का क्या ताकत है ना वो दिखाना चाहिए। वो उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया और वाटर कलर कर दिया। बाद में मुझे एक्रेलिक का काम मैंने कभी किया नहीं। 2001 में मैंने एक्रेलिक का काम शुरू किया तो 20 साल हो गए। लेकिन उसके पहले मैं ऑयल पेंटिंग काम करता था। तो उसमें भी एक्रेलिक में बहुत एक्सपेरिमेंट किया। कैनवास के ऊपर क्या कलर, उसके टेक्सचर, जो फंडामेंटल्स आर्ट के है ना उसका यूज होना चाहिए पेंटिंग में, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बारे में मैंने बहुत बहुत सोचा और बाद में वो अलग अलग ढंग से काम किया। अभी मैंने सीरीज, अभी ये लॉकडाउन में मैंने 50 पेंटिंग किया है। लेकिन वो एक ओनली टेक्सचर और लाइन और कलर तीन ही एलिमेंट लेके पूरा पेंटिंग किया है। पूरे यानी 50 पेंटिंग मैंने किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट जितने तुम करेंगे ना उतना कोई ना कोई उसमें से पेंटिंग से ही आपको समझ जाता है। आपका एक्सपीरियंस है ना वही पेंटिंग है। और लेकिन सिर्फ सोचना चाहिए और देखना चाहिए अच्छी तरह से कि पेंटिंग अपना अच्छा हो रहा है या नहीं है। जी सर, सुमरान जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था और आपने उसको इतने सुंदर तरीके से पूरा किया, तो इसके बारे में बताइए। 2003 में मैं रिटायर हो गया प्रिंसिपल अभिनव कला महा से। तो ऐसा ही घूमते घूमते इधर आया पौड़ के तरफ। तो ये एक वैली बहुत बढ़िया नेचर की मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे मैं गया, एक माउली स्वामी नाम के एक आर्टिस्ट है इधर लखनऊ के, तो लखनऊ में प्राध्यापक थे। उनसे मैंने बात किया और उनसे बात किया कि मुझे बोल लगा थोड़ा एक इधर जगह दे दो। तो उन्होंने छोटी सी एक जगह दी। बाद में उन्होंने कुर्ती दे दिया कि ये बड़ी जगह ले लो। कुछ तो आप आर्टिस्ट है, कॉलेज में प्रिंसिपल थे, कुछ तो इधर आर्ट का हब भी कर दो। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि क्या पेंटिंग करना, सेल करना और अपनी जिंदगी खत्म करना। तो मैंने जो ये हब के बारे में मैंने पहला ये सोचा था कि हमको जो तकलीफ हो गई आर्ट के बारे में वो किसी को नहीं होना चाहिए। उन लोगों को ये आर्ट का पब्लिक सबके लिए, सब आर्टिस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए, सीनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, ये सब इधर आएंगे। और दूसरी दोस्त की ललित कला अकादमी के सब ये ललित कला है ना, एक चित्र, शिल्प, नृत्य, साहित्य, वास्तु, ये सब लोग इधर आएंगे ऐसा मैंने सोचा। और ये सोच के ये जगह लिया। और चित्रा मेटे मेरी लड़की है, वो भी आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरा इधर पैसा उसने लगा दिया है, मैं सिर्फ मेरा विजन लगा दिया है पूरा। और ये करके 10 साल में ये हमारा सुंबरान खड़ा हो गया। तो ये करते समय मुझे ऐसा लगा था कि इधर कौन आएगा, आर्टिस्ट कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसा कभी कभी मन में आता था। तो माउली स्वामी मेरे अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने बोल दिया अरे पौधा तो लगा दो, पंछी आ जाएंगे। तो मैंने ये सुंबरान का पौधा लगा दिया है। आर्टिस्ट आते हैं, तुम भी आए हैं, सब लोग आते हैं, तुम भी हमारे सुंबरान के एक अच्छे आर्टिस्ट है। तो ऐसे बहुत से आर्टिस्ट अभी सब इंडिया से, बाहर से भी इधर आते हैं और मुझे जुड़े हुए हैं। ये सब की बात मुझे आनंद की बात है। और यहाँ पे मैं रहता हूँ सुंबरान पे, अकेला रहता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। ये मेरी सुंबरान यानी मेरी एक आर्ट है, वही मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड वाली सिचुएशन नहीं होती ना तो मैं वहीं आके आपका इंटरव्यू लेती। मैं तो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हूँ सुमरान आने का, मुझे इतना अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मैं 6-7 टाइम्स आपके वर्कशॉप्स या कोई ना कोई मतलब कारण से गैलरी में मतलब आके वहां पे हमने कितने दिन 4-4, 5-5 दिन रह के काम किया। बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो एक बार सुमरान आ जाता है ना
तो उसको मतलब वहां से जाने का मन नहीं करता है, इतना खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो आपने उसके इंटीरियर्स करे हैं और चित्रा के साथ मिलके चित्रा और आपका दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा उसको इतना खूबसूरत बनाने में, जो एक बार आ जाए वो तो वहीं का हो जाता है, इतना प्यारा। सर जैसे आप टीचर रहे हैं और आप ने सभी मीडियम पे आपकी अच्छी पकड़ रही है, क्योंकि आप टीचर हैं तो सब चीजें सिखानी रहती है, तो हर मीडियम पे अपना कमांड रहता है। बट किसी भी आर्टवर्क और मीडियम की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी आर्टवर्क को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसका आर्टिस्ट को ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई भी कॉम्पोजिशन को बनाने का स्टार्ट करते, क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए आर्टिस्ट को? देखो हम लोग यानी तुम क्या मैं हूँ और मेरे साथ साथ जो भी आर्टिस्ट है, लेकिन जो कला यानी पेंटिंग में तो फील्ड में हो हम, तो पेंटिंग क्या है, दृक कला है, दिखना चाहिए, अच्छी तरह से दिखना चाहिए, फर्स्ट है उसमें। और उसके जी फंडामेंटल्स क्या है, पॉइंट, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, ये उसके फंडामेंटल्स है। तो जी फंडामेंटल्स भूल के फंडामेंटल्स पेंटिंग में नहीं, और पेंटिंग कभी नहीं बनता। ये तो ओके चाहिए ही चाहिए, तो आपका आपका आई डेवलप हो जाता है और वो जी दृश्य अच्छा लगता है कैनवास के ऊपर। तो कैनवास के ऊपर फर्स्ट क्या है, तो स्पेस है, स्पेस के बाद सब पॉइंट, लाइन, टोन, टेक्सचर, ये सब शुरू होता है। तो ये सब का ध्यान पेंटिंग करते समय रखना चाहिए, ये मेरा विजन है। ओके। गुरु सर जैसा कलाकार हमारे साथ हो और हम पेंटिंग करते हुए सर को न देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी कला के जो भंडार है उससे कुछ छोटे से मोती शेयर करिए।
ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर आपने बनाया और इतने कम समय में आपने इतना शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हाँ, अरे बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कलर भी कर सकते हैं हम। आज के जी जी जी। और चलते चलते अंत में हमारे सब जो आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका संदेश। तुम्हारे हर दिन काम होना चाहिए बस, या ऐसा नहीं जी। हम जैसे के लिए खाते हैं ना तो जीते हैं ना, जी तो आर्ट में रहना है, आर्टिस्ट होना रहना है तो हर दिन काम करना चाहिए, कौन सा भी मीडियम होने दो, जी चाहे ब्लैक एंड कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल कलर हो, वाटर कलर हो, हर जी। दिन वही मीडियम पेंटिंग करना चाहिए, तो बाद में खाना खाना चाहिए, तो फील्ड में तुम रह जाए। बराबर है, बिल्कुल ये मैं सब लोग बिल्कुल नहीं होता कि आपका आर्ट ये एकदम शॉर्ट, सही है। एकदम एकदम शॉर्ट में सही। आर्ट कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सर, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस शानदार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आपका आभार। थैंक यू सो मच सर। और वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव की तरफ से मैं नीना सिंह आपको ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नीना जी, आपने भी मुझे इस पर बुलाया और मेरा थोड़ा जर्नी, मेरी आर्ट के बारे में आपने पूछा और थोड़ा डेमो भी करने के लिए बोल दिया, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।